Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today we are going to continue chapter 5, that is laws of motion unit 3, with the concurrent forces. Those forces which are acting at same point and are said to be concurrent forces. जो forces same point पे लगे, these are said to be the congruent forces, and equilibrium of the congruent forces is, it means that net force acting on an object is zero. इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है दैट वुड बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. If this happens, then object is said to be in equilibrium. Either object is at rest or is moving with a uniform velocity. That means उस पे जो भी external forces लग रही हैं उसका resultant zero है. अगर वो rest में है तो वो rest में ही रहेगा. अगर वो uniform velocity से move कर रहा है, uniform velocity से ही move करेगा. कोई भी external जो force है जिनका resultant zero है वो उस पे कोई भी externally effect नहीं डाल रही. This is nothing but the equilibrium of congruent forces. Suppose this one is the object और इस पॉइंट पे आप देख सकते हो इस तरफ फोर्स लग रही है F1, इस तरफ फोर्स लग रही है F2, and let F be the resultant of F1 and F2. So F is equal to F1 vector plus F2 vector, and F3 is now acting in the downward direction, which is equal to the negative of F. Okay, which is equal to the negative of F. That means F3 is equal to minus of F. So F3 is equal to minus of F1 plus F2 vector. That means जो F3 है that would be equal to the resultant of the F but in opposite direction. Okay, so that means, so from here you got the F1 vector plus F2 vector plus F3 vector is equals to 0. It means that resultant of all the three concurrent forces acting on the object is zero. यानी कि सभी forces का sum क्या हुआ? Zero. Resultant would be equal to zero. So body is in equilibrium of rest. यानी कि body rest में ही रहेगी, कहीं भी उस पे कोई भी बाहर वाली forces F1, F2 और F3 की वजह से कुछ भी effect नहीं होगा. Okay. Next is friction topic. Friction acts as an opposing forces that comes into play when one body actually moves or slides or rolls or even try to move over the surface of another body. जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश करती है, स्लाइड करने की कोशिश करती है, रोल करने की कोशिश करती है, दिस वन इज रोल्स, और इवन उसके ऊपर मूव करने की भी कोशिश करती है, तो एक अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर लगती है विच इज नोन एज द फ्रिक्शन. ओके. So suppose this one is a block having mass m which is moving on this surface, and this one is the apparent force which is applied on this mass to move it further, and the force of friction is applied to in the opposite direction. So here force of friction is applied in the opposite direction, and here you can see, so ये horizontal forces होगी apparent force, that is force of friction, it will be accompanying him. Next is mg. W is equal to mg, that is weight is acting along downward direction, and R is a direction that is in the opposite direction, because to every action there is equal and opposite force. तो इस weight के comparison में जो opposite way में force लगेगी that would be the reaction. And what would be the cause of the friction? According to the old view theory, roughness of surfaces is the cause of friction. Old theory के according जो surface की roughness है वही उसका cause है. किसका? friction का. When two or more bodies come in contact with each other, the irregularities in the surface of one body gets interlocked in the irregularities of the other surfaces. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तो उन दोनों की जो इरेगुलरिटीज हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से they tries to account the friction according to this old view theory, and to move one body over the surface of the other, these interlockings have to be broken. पर अगर हमें उसे मूव करवाना है तो वो इंटरलॉकिंग्स जो उसका रफ सरफेस है उसको वो ब्रेक करवाना पड़ेगा, उसको इंटरलॉकिंग को. Hence some forces have to be applied, and this applied force is a measure of friction between the two surfaces in contact. अगर हमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे स्लाइड करवाना है उन इरेगुलरिटीज होने के बावजूद भी, तो क्या होना चाहिए कि उनका जो इंटरलॉकिंग है
दो बॉडीज के बीच में वो ब्रेक होना चाहिए। वो ब्रेक करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वही फोर्स क्या बताती है कि उन दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू थ्योरी। मॉडर्न व्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग according to the modern view of friction is that it arises on account of strong atomic and molecular forces of attraction between two surfaces at the point of actual contact। यानी कि modern view of friction क्या है, that it arises on account of strong atomic and molecular forces of attraction। ये क्यों arise करती है, किस वजह से arise करती है, वो तो interlockings की वजह से थी। ओके, ये इरेगुलरिटीज की वजह से जो इंटरलॉक हो जाती हैं दो बॉडीज या दो ब्लॉक्स जब एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करती हैं, वो उस वजह से थी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू थ्योरी। पर यहाँ पे मॉडर्न व्यू थ्योरी क्या कह रही है कि दिस वन इज ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अटोमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बड़ी अच्छी अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो सरफेसेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, जो उनका एक्चुअल कांटेक्ट है पॉइंट का दो सरफेसेस का, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अटोमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन अराइज होती है। ये मॉडर्न व्यू है। एंड ऑन अकाउंट ऑफ रफनेस, अगर हम रफनेस की बात करें तो जो एरिया है एक्चुअल कांटेक्ट का विच इज वेरी स्मॉलर एज दैट ऑफ अपेरेंट कांटेक्ट। कहने का मतलब अगर हम रफनेस की बात करें तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि जितना एरिया उन दोनों का टच अप हो रहा है दो बॉडीज का जो कि एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रही हैं, वो क्या है, काफी ज्यादा स्मॉलर है एज कंपेयर टू द एपरेंट कांटेक्ट। और उन एरियाज की रेशो होगी 1:10⁴। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू थ्योरी। ओके, इसने अटोमिक स्ट्रॉन्ग अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में भी कहा और रफनेस के बारे में भी कहा, और एक रेशो दी एक्चुअल कांटेक्ट की टू द एपरेंट कांटेक्ट्स के साथ, दैट इज 1:10⁴। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। अब हमें फ्रिक्शन पता लग गया क्या होता है, उसकी कॉजेस पता लग गया अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थ्योरी एंड मॉडर्न व्यू थ्योरी। नाउ इट्स टाइम टू डू द फ्रिक्शन टाइप्स। So types of friction is sliding friction, rolling friction and fluid friction. We have to first discuss about the sliding friction. Sliding friction is of three types, again static friction, limiting friction and kinetic or dynamic friction. Rolling friction, basically it is less than that of the sliding friction. That is why tires of each vehicle are made circular. ये भी आपको कंसेप्चुअल आ सकता है कि व्हीकल्स के जो टायर्स हैं वो हमेशा सर्कुलर ही क्यों होती हैं, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ताकि वो इजीली मूव कर सके। स्टैटिक फ्रिक्शन, it is a force of friction which comes into play when one body has tendency to move over the surface of another body but actually the body at rest। ये स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टार्टिंग में ही जो बॉडी रेस्ट पे होती है वो दूसरी बॉडी पे मूव करने की कोशिश करती है पर वो कर नहीं पाती। This one is the static friction. Next is limiting friction. It is a maximum value of static friction. It plays its role when body is just at the point of motion or just on the verge of motion। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो बॉडी है दिस वन इज गोइंग टू बी मोशन, गोइंग टू बी इन मोशन, रेस्ट से सीधा मोशन में आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन को कवर अप करने के बाद, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बाद वो बॉडी जो है बॉडी इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, कि इसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करने के बाद वो मोशन में आ जाएगी, किससे, रेस्ट के बाद। नेक्स्ट इज काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। नाउ अगर बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है लिमिट स्टैटिक को पार करके, लिमिटिंग को पार करके, अब वो काइनेटिक में आ गई है, यानी कि नाउ इट इज मूविंग, one body is moving over the surface of other body, so in that way उस टाइम पे जो फ्रिक्शन अकाउंट होगी दैट इज अ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑब्वियसली बिकॉज बॉडी इज नाउ इन मोशन ना, because when one body actually moves over the surface of another body there is less interlocking। अगर वो actually move कर रही है तो वो उसकी irregularities आपस में interlock नहीं हो पाएंगे due to its cover up of the motion।
यहाँ से आप देख सकते हो वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स. दिस वन इज द अप्लाइड फोर्स. पहले 1 न्यूटन लग रही थी, 2 न्यूटन, 3, 4, 5, 5.1 न्यूटन एंड 5.2 न्यूटन. फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी उस पे 1 न्यूटन पे 1 न्यूटन ही फोर्स फ्रिक्शन लगी, 2 पे 2 लगी, 3 न्यूटन पे 3 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी एंड 4 पे 4 ही लग रही है. दैट मीन्स अब देखिए इस पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना. जितनी अपने अप्लाइड फोर्स की उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है यहाँ तक. सो दिस वन इज अकाउंटेबल इन द स्टैटिक फ्रिक्शन. अब जो मैक्सिमम है देखिए 5.1 ही है, पर इसके बाद वो कम होनी स्टार्ट होगी, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की दैट वुड बी अकाउंट एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन. सी from the table it is clear about the static friction, limiting friction. अब उसकी फ्रिक्शन क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज अब जो बॉडी है दैट कम्स इनटू मोशन, वो दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है. यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स 5.2 है बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई, दैट इज 4. अब उसके ऊपर जो भी फ्रिक्शन लग रही है कम हो गई ना, दैट वे इट इज कम टेकन इनटू अकाउंट द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो अब ये तीनों फ्रिक्शंस आई होप आपको समझ में आ गई होगी. नाउ दिस वन इज द ग्राफ. इस साइड आप अप्लाइड फोर्स लेंगे और इस साइड आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेंगे. सबसे पहले यहां से लेके यहां तक जब उसकी 1 पे 1 रही, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, यही इसी चीज का ही हमने ग्राफ प्लॉट किया. तो यहां तक तो उसकी क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर एक पॉइंट आएगा हाईएस्ट 5.1, है ना, ये देखिए 5.1 मार्क किया हुआ है. दिस वन इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस अकाउंटिंग टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद कम होनी स्टार्ट हो गई बिकॉज इट कम्स इनटू मोशन नाउ एंड देन इट विल बी अकाउंट इन द कॉन्स्टेंसी. दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन. क्योंकि इसके बाद ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम के बाद कम होनी स्टार्ट हो गई, और कम होनी कब स्टार्ट होगी, जब बॉडी मोशन में आ जाएगी रेस्ट से. ओके, सो नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम लेस. सो हेयर इज अ डायनामिक फ्रिक्शन. ग्राफ से ही क्लियर है. स्टैटिक, यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक, फिर एक पॉइंट लिमिटिंग मैक्सिमम, फिर कम होनी स्टार्ट होगी, देन इट विल कम इनटू डायनामिक फ्रिक्शन. Next is coefficient of static friction. We know that according to the limiting friction, law of limiting friction क्या होता है कि जो force मतलब friction है, limiting friction, that would be directly proportional to the reaction of the body. Okay, so FL is equal to proportionality constant हटाने के लिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे mu s, and mu is the coefficient of the static friction. तो यहाँ से म्यू एस कितना आ जाएगा, एफ एल डिवाइड बाई आर. अब म्यू एस की कोई भी यूनिट्स नहीं है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन भी क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये भी रिएक्शन भी एक तरह की फोर्स ही है, और ऊपर जो लग रही है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज ऑल्सो इट इज एन फोर्स. तो फोर्स डिवाइड बाय फोर्स दैट मीन्स यूनिट इज गोइंग टू बी कैंसल आउट. इसका मतलब म्यू एस का कोई भी यूनिट नहीं होगा. ओके, it is a purely number and mu s is always less than 1. एंड म्यूअस जो है वो डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ सरफेसेस कैसे हैं इन कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश, कि उसमें कितनी रेगुलरिटीज हैं, वेदर इट बी स्मूथ और इरेगुलर. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. वी नो कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. Force of kinetic friction is proportional to the normal reaction between the two surfaces in contact. ये जो normal reaction की बात हो रही है ना, ये इस चीज की बात हो रही है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेट डाउनवर्ड है, और इसी की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो दिस वन इज normal reaction. Here it is Fk proportional to R, similar to the limiting fraction. अब यहाँ पे proportionality constant क्या होगा, mu k. mu k कितना आ जाएगा, Fk डिवाइड बाय R. और अब mu s डिवाइड बाय mu k की हम रेशियो लेंगे. mu s किसके बराबर था बेटा, Fl डिवाइड बाय R. So mu k किसके बराबर था, Fk डिवाइड बाय R. So divide by dividing both the equations you got mu s divided by mu k is equal to Fl divided by Fk. अब वी नो दैट एफ एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ के, क्योंकि एफ एल क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट वुड बी लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग. वो हम अभी ग्राफ में देख के चुके हैं. सो एफ एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के, सो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के. अब एफ एल एफ के से बड़ा है, इसका मतलब म्यू एस भी म्यू के से बड़ा होगा. ओके,
नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमें। एक ब्लॉक दिया हुआ है हमें, P इज द अपरेंट फोर्स, जो उसको हमने सपोज किया इस तरफ से खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, वेट डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड लग रहा है। और R डैश मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ FL एंड R बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, इट इज क्लियर। एंड दिस वन इज द सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रहा है। ओके, R डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ FL एंड R इन ए ट्रायंगल OAB। अब OAB ट्रायंगल देखिए, tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज AB डिवाइड बाय OB। सो AB डिवाइड बाय OB, AB किसके बराबर है? FL के बराबर है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CO ना, सो AB इज इक्वल टू FL। OB इज इक्वल्स टू, OB किसके बराबर है? R, जो रिएक्शन लगा, डिवाइड बाय R। और FL डिवाइड बाय R क्या था? म्यू एस। FL डिवाइड बाय R क्या था? ये देखिए, FL डिवाइड बाय R क्या था? म्यू एस, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम। FL क्या होती है? क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इसलिए यहाँ पे म्यू एल नहीं म्यू एस लिखा गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan of theta is equals to mu s। इसका मतलब mu s is known as a coefficient of static friction. It is that angle whose tangent is equal to the coefficient of static friction. Okay? तो यहाँ से हमें angle of friction के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो हम ऑलरेडी कर चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू गेट द एंगल ऑफ रिपोज। एंड फ्रॉम इट फिगर इट इज क्लियर दैट बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, है ना, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि लिमिटिंग के बाद ही काइनेटिक आता है, मतलब इसके बाद वो मोशन में स्टार्ट शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन है, जो कि अल्फा के ऊपर इंक्लाइंड किया हुआ है। ये बॉडी है जिसका मास m है और उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, नीचे की तरफ, है ना, दिस वन mg। अब ये अल्फा एंगल, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ओके, सो अल्फा के साथ अगर मैं mg को, ये सेंटर से वेट आ रहा है mg, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। ओके, उसके बाद FL अगर इस साइड लग रही है तो जो फोर्स है, सॉरी नीचे की तरफ आ रहा है वो, तो फोर्स अगर जो मैं अपरेंट फोर्स लेती हूँ वो नीचे की तरफ लग रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट साइड होगी, दैट FL की डायरेक्शन। mg नीचे की तरफ है और रिएक्शन क्या होता है? हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। ये सरफेस है, इसके नॉर्मल क्या हो गया? रिएक्शन। डायग्राम समझ में आया? प्लेन है, इंक्लाइन किया हुआ है अल्फा एंगल पे, ये ब्लॉक है, मास m है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये अल्फा, ये भी अल्फा, और इसी की वजह से मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, mg cos ऑफ अल्फा, mg sin ऑफ अल्फा। अपरेंट फोर्स इस तरफ लग रही है, यानी कि इसका मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी हमेशा। मोशन के ऑपोजिट लगती है फ्रिक्शन हमेशा, ठीक है, क्योंकि इट इज अपोजिंग द मोशन ना, इसकी डेफिनेशन ही यही है। So F will be the behind and R is a normal direction, plane के normal, तो this one is directed as R. So from figure it is clear that body is in limiting equilibrium. अब FL किसके बराबर है? आप देख सकते हो FL किस कंपोनेंट के बराबर है? mg sin of alpha, mg sin of alpha। और R किसके बराबर है? mg cos of alpha। ओके, तो ये मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास क्या आ गया? tan of alpha is equals to mu s। tan of alpha is equals to mu s, पर mu s किसके बराबर था? tan of theta के बराबर था। That means tan of theta is equals to tan of alpha. This is nothing but the angle of repose. Okay. Next is acceleration of a body sliding down on a rough surface inclined at an angle theta. Same is a diagram कि अब पहले अल्फा पे थी, अब थीटा पे है। ये मास है ब्लॉक का, नीचे की तरफ mg लग रहा है, इस साइड mg cos थीटा, इस साइड mg sin थीटा। F इस तरफ लग रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, दैट इज F इज इक्वल टू Fk एंड R इज अ रिएक्शन in the normal direction and acceleration be there because motion is in the this direction, तो acceleration भी इसी direction में होगा। अब हमें acceleration निकालनी है, so R is equals to mg cos of theta। F किसके बराबर जाए? नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? mg sin थीटा माइनस F, क्योंकि इस तरफ मैंने एक फोर्स लगाई है। ओके, अब इस तरफ जो मैंने फोर्स लगाई है वो किसके बराबर, मतलब वो भी
अकाउंट होगी ना इसमें, सो एफ नेट फोर्स किसके बराबर होगी, mg साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है जी, mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, नेट फोर्स पे। तो वही नेट फोर्स हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ले सकते हैं, इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए किसके बराबर आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। अब एफ किसके बराबर होता है, म्यू आर के बाय डेफिनेशन। सो एम ए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ मैं एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से देखिए एम ए एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने एम जी कॉस ऑफ थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, नेट फोर्स किसके बराबर थी, इसमें से इसको माइनस कर दिया फ्रिक्शन को, तो मेरे पास वो नेट फोर्स आ गई। अब इसी को ही मैं सब कुछ इसमें पुट कर रही हूँ ताकि मैं एक्सेलरेशन निकाल सकूँ। यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, एम ए, ये आ गया एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ किसके बराबर है, म्यू आर के। अब आर की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज एम जी कॉस ऑफ थीटा, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से एम ए एम जी कॉमन ले लिया, क्या बन गया, साइन थीटा माइनस यू कॉस ऑफ थीटा। सो ए इज इक्वल्स टू जी साइन ऑफ थीटा माइनस यू कॉस ऑफ थीटा, दैट्स इट। ओके, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू सो मच।